Hi, I'm Hina, and welcome back to my channel, The High Soul Tarot. And today I'm again there with a new pick a card reading, and the reading the topic for today's reading is that it is a सोलमेट, ट्विन फ्लेम और कार्मिक कनेक्शन. तो आज की रीडिंग में हम लोग ये पता करेंगे कि जो रिलेशनशिप में आप हैं वो आपका सोलमेट कनेक्शन है, वो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या वो आपका कार्मिक कनेक्शन है. राइट, सो लेट्स फाइंड आउट. हाँ, रीडिंग के लिए हम 2 पाइल्स बनाएंगे और उनमें से 2 कार्ड्स रखेंगे, 2 पाइल्स बनाएंगे, जिसमें से आपको एक पाइल सिलेक्ट करनी है. आपको अपने पर्सन पे ध्यान देना है और पाइल को इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है. राइट, और पाइल सेलेक्ट करते वक्त आपको अपने पर्सन के बारे में ही फोकस करना है, पर्सन के बारे में ही सोचना है और अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. This is pile 1 and this is pile 2, right? So you can select with the bracelets, right? So this is pile 1, this is pile 2. Pile 1 is having this bracelet, right, and pile 2 is having this bracelet, right? So whichever pile you are drawn to or attracted to, आप उसको चूज कीजिए और वो डेफिनेटली आप ही की पाइल होगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पाइल. हम जानते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो कार्मिक कनेक्शन है, या वो सोलमेट कनेक्शन है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइल 1 रीडिंग. सो दिस इज योर कार्ड, वेस्टा, हर्थ. Okay, so let's start. What kind of connection you have? Okay. So, pile 1. I find this as a karmic connection, very much karmic connection, right? Because this is actually a past life connection. This is a karmic connection because we have number 8. Number 8 or 8 of Pentacles is there. Number 8 is a number of Saturn. Saturn shows karmas, right? And this is 32. 32 is 5, 5 and 5 and 5. All 5s are there, right? So 5 and 8. If you see in astrology, 5, the 5th house, right? It always shows your past life deeds, past life karma, right? So your past life karmas are always seen from the 5th house. So it is
shown by your fifth house, right? That is, fifth house is also a house of your thoughts, house of your creativity, house of your love affairs, right? Your love interest, right? Your marriage, right? Sometimes not actually marriage. Marriage is shown by the house, seventh house, but you know, basically fifth house is again shown by sun, Leo, right? So you know, that shows your soul. सन शोज योर सोल. तो जो सन होता है, जो फिफ्थ हाउस होता है, वो आपके सोल को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो दैट्स वाई दैट इज कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ. सो वॉट आई सी हियर इज योर पास्ट लाइफ connection. Fine. So number 5 is there. Fine. And number 5 is again related to, if we talk about the numerology, then number 5 is represents Mercury. Mercury so shows communication, travels, right? So your soul has traveled from lives to lives, right, to get connected, right? So this particular relationship is 100% karmic relationship, right? The Hierophant shows that in the past life you might have got married with each other. You were partners, married partners, right? And you had conflicts of thoughts, of ideas, conflicts in due to communication. Maybe you know, you used to use very harsh words with each other, you used to compete with each other, right? So these things are there. In the past life, it is possible that your person might have abandoned you. उन्होंने आपको छोड़ दिया था, ठीक है? This is also a possibility, राइट? अपने काम में, जॉब में इतने बिजी थे कि आपके लिए टाइम ही नहीं था उनके पास. फाइन. और आप जो थे अपने मन में, कहते हैं ना कि उनका वेट करते 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 यू नो आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जो आपकी प्यार था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होता चला गया, ठीक है? तो जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, अभी भी आपके रिलेशनशिप में आप ये जो आपका जो रिलेशनशिप है, उसमें मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एक तो आपको कमिटमेंट मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, शादी के लिए कमिटमेंट नहीं मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रहती हैं कमिटमेंट को लेके. मतलब एक इंसान कमिटमेंट मांग रहा है, दूसरा कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है? एक इंसान शादी के लिए तैयार है, नई शुरुआत के लिए तैयार है, न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार है, लेकिन दूसरा कमिटमेंट नहीं दे रहा है. और इस रिलेशनशिप में एक्चुअली आपको बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है इस रिलेशनशिप की, राइट? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. लेट्स सी मोर. और इस रिलेशनशिप में क्या है, इस कार्मिक रिलेशनशिप में और क्या है? लेट्स सी मोर. Yes. In the past life also it happened that this person was so much involved in his work, in his business, in making money and all, due to which he was not able to give time, right? And you were just waiting and waiting. You were hoping for this relationship to work, right? So आप मुझे वेट करते हुए ही दिख रहे हैं, और अभी भी अगर देखा जाए तो आप इस रिलेशनशिप में वेट ही कर रहे हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ अ कार्मिक रिलेशनशिप. यस, ईगो प्रॉब्लम भी इस रिलेशनशिप में हो सकती है. इमोशंस जो है, एक के पास बहुत ज़्यादा हैं, दूसरे के पास बहुत कम है, ठीक है? एक पर्सन बहुत इमोशनल है, एक पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है? आपके जो इमोशंस हैं वो सामने वाला समझता ही नहीं है, आपके प्यार को सामने वाला समझता ही नहीं है, राइट? तो ये मुझे आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है?
Let's see more. What else is there? आप मुझे 100% पास्ट लाइफ से मैरिड ही दिख रहे हैं, ठीक है, और आपको इस रिलेशनशिप में जो एक्चुअली केयर अटेंशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है. यू आर नॉट गेटिंग दिस केयर एंड अटेंशन. इस लाइफ में भी आपको जितनी केयर, जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए, हो सकता है कि आप मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, राइट, ये भी पॉसिबिलिटी है. और इस रिलेशनशिप में जितनी आपको अटेंशन, प्यार, सपोर्ट मिलना चाहिए वो आपको एक्चुअली नहीं मिल रहा. इस रिलेशनशिप पे आप बहुत ज़्यादा, आपको काम करना पड़ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, ठीक है, ये आपका सिनेरियो है. बहुत अकेलापन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. बहुत ज़्यादा बात आप दोनों के बीच में नहीं होती हैं, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं. बहुत वर्कोहॉलिक हैं, बहुत ज़्यादा काम में रहते हैं, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बोलो या इमोशनली ही इज़ नॉट वेरी इमोशनल पर्सन, राइट, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं. यहाँ पे मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं. लेट्स सी और क्या है इस रिश्ते में. See the card, silence. I told you that there is a silence in this relationship. There is lack of communication, loneliness I can see in this relationship. एक इंसान है जिसके पास, जो बहुत इमोशनल है, लेकिन उसको बात करने वाला कोई नहीं है, बहुत अकेला महसूस करता है वो इस रिश्ते में, राइट. सो दिस इज़ देयर, दिस इज़ द साइलेंस, राइट. और हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है वो बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत गॉड फियरिंग हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, राइट, और बहुत इंट्यूटिव भी हैं, और अकेला रहना बहुत पसंद करते हैं, फाइन, और अबंडेंट है. सब ऐसा है ना कि सब कुछ होते होते भी मेरे पास कुछ नहीं है. दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ देयर, कि पैसा है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट वो पर्सन ही मेरे पास नहीं है, राइट. और आपको जो आपके पास है आपको वो भी नहीं दिखता है, बिकॉज यू आर सो मच इन टू दैट पर्सन, फाइन. आप के बीच में दूरियां हैं, आप एक दूसरे को एक्चुअली समझ ही नहीं पाते हो, ठीक है. आपके बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. आप जैसे हो वैसा आप दिखा नहीं पाते हो, और वो जैसे हैं वो वैसा वो दिखा नहीं पाते हैं. तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है, ठीक है. मुझे एक इंसान दूसरे पे अपने थॉट्स को इम्पोज करता हुआ दिख रहा है, अपने जैसे कि सामने वाले को मैं जो चाहता हूँ वो मैं करा लूँ, या चीज़ें मेरे हिसाब से ही होती हैं, या उन्होंने ये सोचा कि ये सही है तो ये सही है, ये गलत है तो ये गलत है, राइट. वो कभी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं आपके जो पार्टनर है. तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज़ प्योरली अ कार्मिक कनेक्शन, वेयर इन सब कुछ होते हुए भी आपको अकेलापन फील होता है, और बातें अच्छे से नहीं हो पाती हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी है. आप इस रिश्ते से निकलना भी चाहते हैं लेकिन आप उसमें से निकल नहीं पाते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस इंसान के साथ, राइट. सो दिस इज़ व्हाट आई सी. पाइल 1, यू हैव अ कार्मिक connection, right? So now let's move on to our next pile, right? I hope pile 1 you liked your reading, and if you like the reading, kindly hit the like button and subscribe to my channel, right? See you in another reading. Now let's see pile 2 who have chosen this bracelet, right? And pile 2.
solar calm, clarify. So let's see, is it a karmic connection, soulmate connection, or a twin flame connection? Let's see. Pile 2. What kind of relationship is it? So pile 2, yes, this is definitely a past life soul connection, right? This is a soul connection, no doubt about it, right? Because the sun is there, fine. 6 of Cups is there, fine. Queen of Cups is there. So emotions are there. This is the past life connection. This is a soulmate connection. This shows past life, and this sun always shows our soul, solar calm. This also represents sun, right? So this is actually a soulmate connection on a soul level. फाइन, यू फील वेरी हैप्पी विद ईच अदर, राइट? जब आप इनसे मिले होंगे पहली बार तो आपको लगा होगा जैसे कि मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ या जन्मों जन्मों से जानती हूँ, ये कोई नया रिश्ता नहीं है, ये काफ़ी पुराना रिश्ता है, ये तो जो रिश्ता है वो जन्म जन्म से चला हुआ आ रहा है, फाइन. सो it's that kind of a feeling, right? The moment you met this person, you believe that this person is going to be there in your life for long term, right? And जिस दिन आपने उनको देखा तब से आपका मन करा कि we should work in this relationship, और ये this relationship will work in the future, right? आप एक दूसरे के जैसे काउंटर पार्ट हैं, फाइन. आप दूसरे जैसे एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, राइट? यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, राइट? आप जो मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं वो बहुत ही इमोशनल हो सकते हैं, जो इनके जो पर्सन हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, राइट? थोड़ा मेरी जो फीमेल व्यूअर्स हैं वो रोमांटिक हो सकती हैं, वो अनरोमांटिक हो सकते हैं उनके पार्टनर्स, राइट? लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा, खुश, पॉजिटिव फील करते हो. मतलब जब भी आप एक दूसरे के साथ होते हो ना तो आप लोगों का ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, फाइन. So this is that kind of a connection. This is definitely a soulmate connection, right? Yes, एक नया कनेक्शन होते हुए भी ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आपके दिल के बहुत करीब हैं, राइट? एंड यू आर 100% इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप. काफ़ी स्टेबल मुझे ये रिलेशनशिप आपका दिख रहा है, और यू फील वेरी सिक्योर्ड इन दिस रिलेशनशिप. यू नेवर वांट टू लूज दिस रिलेशनशिप, एंड यू फील हैप्पी, वेरी हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप. और काफ़ी कुछ आप जब से इस रिश्ते में आए हैं तब से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इनसे, अपने पार्टनर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. आप काफ़ी ग्रो हुए हैं इस रिलेशनशिप में, राइट? स्पिरिचुअली, मेंटली आप काफ़ी ग्रो हुए हैं, आप की नॉलेज चीज़ों को लेके काफ़ी बढ़ी है, आपने काफ़ी कुछ सीखा है इस रिश्ते में जब से आप इस रिलेशनशिप में इनके साथ आए हैं, फाइन. और आप इनको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी प्यार करते हैं, और
you know, he's very dear to you. You never want to lose this relationship. फाइन, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं आप इस रिश्ते को लेके, बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं आप इस रिश्ते को लेके, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है जैसे यू नो कि अगर ये है तो मतलब ही इज़ माई वर्ल्ड, राइट। अगर ये है तो मुझे अभी कुछ और, मतलब यू नो दैट सॉन्ग तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, दैट काइंड ऑफ फीलिंग आई गेट इन दिस रिलेशनशिप, दैट व्हेन यू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ यू फील कंप्लीट, you don't need anything else, right? You feel happy in that world of which you meet around him. तो आप बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं आप इनको लेके, ठीक है ना। यू ऑलवेज कीप प्रेइंग दैट यू नो ही शुड ऑलवेज रिमेन विद यू, फाइन। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके दिखाई दे रही है। पॉसिबल है कि आपने शायद आप किसी पास्ट में किसी रिलेशनशिप से निकले हैं और यू नो उस पास्ट रिलेशनशिप में आपको काफ़ी पेन था, लेकिन दिस पर्सन हैज़ बिकम योर सन, दिस person has given you that sunlight, right? That sunshine which you have always been longing for. जिस कहते हैं ना, जिस प्यार की, जिस केयर की आपको हमेशा से तलाश थी, वो आपको इस पर्सन ने दिया है। यू फील दैट काइंड ऑफ लव विद दिस पर्सन। पास्ट में हो सकता है कि आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो और आप बहुत अकेले हों जब आप इस इंसान से मिले, इस पर्सन से मिले। उस टाइम पहले आपको हो सकता है कोई पास्ट लाइफ, सॉरी मतलब नॉट पास्ट लाइफ, मतलब कुछ प्रीवियस हार्ट ब्रेक आपका हो सकता है जिसकी वजह से आप काफ़ी अलग थे, आपने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। बट द मोमेंट यू मेट दिस पर्सन, राइट, ही ब्रॉट हैप्पीनेस बेसिकली इन योर लाइफ। ये आपकी ज़िंदगी में काफ़ी खुशी लेकर आए हैं। दिस कैन बी अदर वे राउंड, यू नो, हो सकता है मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन की लाइफ में खुशी लेकर आए हों, राइट। उनको एक सपोर्ट सिस्टम बन के आप उनके खड़े हुए हों, ठीक है। तो ये डेफिनेटली मुझे एक सोलमेट कनेक्शन ही दिखता है जो काफ़ी प्योर है, जो काफ़ी लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव, you know, that kind of relationship which I see in this particular pile number 2, right? Let's see what else is there. और इस रिश्ते में क्या है? Let's see what else is there. Let's see. See, I told you, this person has changed your life. जो भी आपकी पुरानी परेशानियां थी, जो भी आपका हार्ट ब्रेक था, उससे जो स्ट्रेस, डिप्रेशन में आप थे, उससे इन्होंने आपको बाहर निकाला है, ठीक है। और ये आपकी लाइफ में एक नई, कहते हैं ना, अगेन सनशाइन लेकर आए हैं, एक नई पॉजिटिविटी लेकर आए हैं, एक नई, यू नो, ही बेसिकली help you to create a new life, right? आप जैसा पहले, जैसे आपकी लाइफ थी, इन्होंने बिल्कुल से उसको चेंज कर दिया और एक अच्छी, खुशनुमा, कहते हैं ना, बेटर लाइफ आपके लिए क्रिएट की है, राइट। तो इन्होंने आपके लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन से निकाल के आपको बहुत खुशियाँ दी हैं, फाइन, आपकी लाइफ को कंप्लीट किया है, राइट। और मैंने आपको पहले भी बोला था दैट यू आर वेरी कंपैटिबल विद ईच अदर, राइट। आप सोलमेट्स हैं क्योंकि आप एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, यिन एंड यैन, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। यू आर एक्चुअली अ पेयर ऑफ सोलमेट्स, फाइन। एक बहुत, मैंने बोला ना, एक बहुत ही मैस्कुलिन है, एक बहुत फेमिनिन है, एक बहुत ही हो सकता है प्रैक्टिकल है, और दूसरा इमोशनल है, दैट्स व्हाट आई सेड। बट एक हो सकता है कि
काफ़ी माचो टाइप्स हो, यू नो, मैस्कुलिन हो, और आप काफ़ी फेमिनिन हैं, काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी लविंग हैं, काफ़ी केयरिंग हैं। आपका प्यार दिखाने का तरीका है कि यू सेंड हिम अ लॉट ऑफ मैसेजेस, यू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर हिम, एंड यू रिमेंबर ऑल द डेट्स, रेलेवेंट डेट्स, जब आप पहली बार मिले या पहली बार आप कहीं घूमने गए, आपकी पहली एवरीथिंग यू रिमेंबर, एंड you basically believe in showing your love with care and affection, whereas आपके जो पार्टनर हैं वो इतने ज़्यादा कहते हैं ना कि एक्सप्रेसिव ना हो, ठीक है। आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, और जो उनके पार्टनर हैं वो इतने एक्सप्रेसिव ना हो, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आपके अंदर जो फ्लॉज हैं वो पूरा करते हैं, उनके अंदर जो फ्लॉज हैं वो आप पूरा करते हैं, तो आप एक्चुअली एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और मैं ये बोल सकती हूँ दैट यू बोथ हैव दैट फीलिंग दैट यू बोथ आर created for each other, you are meant to be together, fine, so that kind of feeling you have in this relationship. So that was all for pile number 2, and this reading was really very beautiful and I really liked it, and I hope that you really like this reading, and if you like this reading, kindly hit the like button and subscribe to my channel, and meanwhile take care of yourself. Thank you so much.